శ్రీనివాస గోవింద శ్రీ వెంకటేశ గోవింద శ్రీనివాస గోవింద శ్రీ వెంకటేశ గోవింద భక్తవత్సల గోవింద భాగవత ప్రియ గోవింద గోవింద హరి గోవింద గోకుల నందన గోవింద శ్రీనివాస గోవింద శ్రీ వెంకటేశ గోవింద శ్రీనివాస గోవింద శ్రీ వెంకటేశ గోవింద నిత్య నిర్మల గోవింద నీలమేఘ శ్యామ గోవింద గోవింద హరి గోవింద గోకుల నందన గోవింద శ్రీనివాస గోవింద శ్రీ వెంకటేశ గోవింద శ్రీనివాస గోవింద శ్రీ వెంకటేశ గోవింద పురాణ పురుష గోవింద పుండరికాక్ష గోవింద గోవింద హరి గోవింద గోకుల నందన గోవింద శ్రీనివాస గోవింద శ్రీ వెంకటేశ గోవింద శ్రీనివాస గోవింద శ్రీ వెంకటేశ గోవింద నందనందన గోవింద నవనీత చోర గోవింద గోవింద హరి గోవింద గోకుల నందన గోవింద శ్రీనివాస హలో గోవింద శ్రీ వెంకటేశ గోవింద శ్రీనివాస గోవింద శ్రీ వెంకటేశ గోవింద పశుపాలక శ్రీ గోవింద పాప విమోచన గోవింద గోవింద హరి గోవింద కళ్యాణాద్భుతగాత్రాయ కామితార్థప్రదాయినే శ్రీమద్వేంకటనాథాయ శ్రీనివాసాయ తే నమః శ్రీనివాసాయ తే నమః. అఖిలాండకోటి బ్రహ్మాండ నాయకుడు వెంకటేశ పరబ్రహ్మ ఈరోజు రథసప్తమి పర్వదినంలో 7 వాహనములపైన అతి సుందరంగా ఊరేగబోతున్నాడు. దానిలో ప్రథమంలో సూర్యప్రభ వాహనాన్ని మనమంతా కూడా దర్శించబోతున్నాం. ఈ బ్రహ్మాండంలో ఇంతకంటే మించినటువంటి దేవాది దేవుడు లేడు అని చెప్పి బ్రహ్మాండ పురాణము యొక్క వాక్యం. శ్రీ వెంకటేశం అతి సుందర మోహనాంగం శ్రీభూమికాంతమరవిందదళాయతాక్షం ప్రాణప్రియం ప్రబిల సత్కరుణాంబురాసిం బ్రహ్మేంద్రవంద్యం అమృతం వరదం భజామి వరదం భజామి. వరములిచ్చేటువంటి కోనేటి రాయుని యొక్క దివ్య సప్తవాహన సేవ చూడండి. సప్తవాహనకు సంబంధించినటువంటి గోవిందనామముల యొక్క చిత్తరూపణ కనిపిస్తుంది. వెంకటేశుని దర్శించబోతున్నాం మనమంతా కూడా. ఈరోజు సూర్యుడు అమితానందంగా ఉన్నాడు. ఎందుకని? భగవంతుణ్ణి నేను దర్శించబోతున్నాను, భగవంతుని యొక్క దివ్య పాదపద్మములకు నా కిరణాలు ఉంచబోతున్నాను అనేటువంటి విధంగా అత్యంత సంతసంగా అత్యంత ఆనంద మిశ్రితంగా ఉన్నాడు ఈరోజు ఆ సూర్యుడు. సూర్యం సుందరలోకనాథమలము వేదాంత విష్ణు భాస్వత్కిరీటాంగద వలయగళా కల్పహారోధరాంఘ్రి శ్రోణీభూషం స్వవక్షో మణిమకుటమహాకుండలామండితాంగం హస్తోద్యశంఖచక్రాంబుజగదమమలం పీతకౌసేయవాసం విద్యోతన్మూర్తి
విద్యోతన్మూర్త్యం ఉద్యద్దినకర సదృశం విద్యోతన్మూర్త్యం ఉద్యద్దినకర సదృశం పద్మసంస్థం నమామి నమామి. సూర్యప్రభవాహనముపై సూర్యకోటి సుతేజుడు వాహనముపై సూర్యకోటి సుతేజుడు సృష్టిలోన సుందరుడు సుహిత వేద మందిరుడు సూర్యప్రభవాహనముపై సూర్యకోటి సుతేజుడు వ్యత్యస్త పాదారవిందుడు గోవిందుడు వ్యత్యస్త పాదారవిందుడు గోవిందుడు మురి పాల మురళి గోపాలుడు శ్రీ వెంకటకృష్ణుడు శుభోదయ మధ్యాహ్న సంధ్యా సమయ శోభితుడు ఉదయ మధ్యాహ్న సంధ్యా సమయ శోభి సూర్యమండల కలితుడు సుకృత తేజలనితుడు సూర్యమండల కలితుడు సుకృత తేజలలితుడు పరమ పావన గాయత్రి మంత్ర మహిమాకరుడు పరమ పావన గాయత్రి మంత్ర మహిమాకరుడు భవ శివాది వంద్యుడు భవహరుడు శుభకరుడు భవ శివాది వంద్యుడు భవహరుడు శుభకరుడు సూర్యప్రభ వాహనముపై సూర్యకోటి సుతేజుడు ఆ కర్మ సాక్షిగా చిలి కనుల వెలుగై వెలుగువాడు కర్మ సాక్షిగా కళలు చిలికి కనుల వెలుగై వెలుగువాడు వానలను కురిపించి దండిగా పాడి పంటలు పెంచువాడు వానలను కురిపించి దండిగా పాడి పంటలు పెంచువాడు ఆరోగ్య మహాభాగ్యమునందరికి అందించువాడు ఆరోగ్య మహాభాగ్యమునందరికి అందించువాడు అజ్ఞానము నణచి ఘన విజ్ఞానము కరుణించువాడు అజ్ఞానము నణచి ఘన విజ్ఞానము కరుణించువాడు సూర్యప్రభ వాహనముపై సూర్యకోటి సుతేజుడు సృష్టిలోన సుందరుడు సుహిత వేద మందిరుడు సూర్యప్రభ వాహనముపై సూర్యకోటి సుతేజుడు సూర్యప్రభ
సూర్యం సుందరలోకనాథం వేదాంతసారం శివం జ్ఞానం బ్రహ్మమయం సురేశమమలం లోకైకచిత్తాపరం ఇంద్రాదిత్యవరాధిపం సురగురుం త్రైలోక్యచూడామణిం బ్రహ్మ విష్ణు శివస్వరూపహృదయం వందే సదా భాస్కరం వందే సదా భాస్కరం. ఏడుకొండలపైన నరకుండేటువంటి దేవాదిదేవుడు ఈరోజు సూర్యప్రభ వాహనంలో కనకమణిమయ కాంతులతో విరాజిల్లేటువంటి దివ్య దృశ్యాన్ని మనం చూస్తున్నాం. అదుగు శ్రీ బృందములంతా కూడా విచిత్రమైనటువంటి దివ్య వేషధారణలతో కనకాంబరపు రంగు వస్త్రములు, బంగారు రంగు వస్త్రములు కట్టుకున్నటువంటి వాళ్ళై స్వామి ముందు కోలాటం చేసేటువంటి కమనీయ దృశ్యాన్ని చూశాం. జగత్సాక్షీభూతుడు భాస్కరుడు, త్రిలోకములకు ప్రకాశింపజేసేటువంటి విశిష్ట జ్యోతిస్వరూపుడు లోకబాంధవుడు సూర్యుడు. అదేవిధంగా బ్రహ్మ విష్ణు మహేశ్వర స్వరూపుడు, వేదాంతసారమైనటువంటి అద్వైతము, విశిష్టాద్వైతము, ద్వైతము, శివము కూడా ఇట్టే భావిస్తున్నారు. ఇంద్రాది దేవతలకు అధిపతి గురువు కూడా ఇట్టి సూర్యుని ప్రార్థించడం వల్ల జీవులు నైష్కర్మ్య సిద్ధియగు మోక్షాన్ని పొందుతున్నారు. ఇతడు జీవలోకమందు ప్రత్యక్ష దేవతగా పూజింపబడుతున్నాడు. కాబట్టి ఆ సూర్య దర్శనం కొండపైన దేవా ఆదిదేవ పరమాత్మా వేద వేదాంత వేద్య నమో నమో ఆదిదేవ పరమాత్మా వేద వేదాంత వేద్య నమో నమో ఆదిదేవ పరమాత్మా. ओम त्रैलोक्य दीपो रवि ओम नमो वेंकटेशाय ओम नमो भगवते श्री सूर्यनारायणाय नमः जपा कुसुम संकासम कासपेयम महाद्युतिम तमोरिम सर्वपापग्नं प्रणतोष्मि दिवाकरम. ओम भगवते श्री सूर्यनारायणाय नमः. प्रिय भक्तजनों, आज आदिदेव प्रत्यक्ष देव ग्रहाधिपति भगवान सूर्य नारायण विशेष रूप में स्वामी पुष्करणी तटे में दिव्य तीर्थ क्षेत्र में अखिलांड कोटि ब्रह्मांड नायक कलयुग के प्रत्यक्ष देव इस वाहन के ऊपर, सूर्य प्रभा वाहन के ऊपर आरूढ़ होकर के अपनी सभी भक्तों का कल्याण करने हेतु आज इस विशिष्ट पर्व के दिन सभी भक्तों को दर्शन दे रहे हैं। ये किस प्रकार से रंग बिरंगे सुगंधित पुष्प रत्न खचित से जटित मणि माणिक्य आदियों से आज हम प्रत्यक्ष रूप से प्रभु इस बेला में ब्रह्म मुहूर्त में हम दर्शन कर रहे हैं। ओम नमो वेंकटेशाय नामोच्चारण के साथ देखिए किस प्रकार से वाहन मंडप में प्रभु अपने इस
भक्तों के साथ, भक्त मंडलियों के साथ किस प्रकार से इस वाहन मंडप में विराजमान हैं। और जो भक्त मंडली हैं दूर दूर से आकर के इस शोभा यात्रा को और शोभायमान कर रहे हैं। भगवान गज को हमें इस चित्र पे दिखाया जा रहा है दूरदर्शन के माध्यम से। हम जानते हैं कि शोभा यात्रा में सभीयों का, जितने भी जीव जंतु पशु पक्षी, वह सभी प्रभु के इस दिव्य रूप का, दिव्य स्वरूप का दर्शन करने हेतु यहाँ पे पधारते हैं। प्रभु की असीम लीला है, जिस लीला को हम जानते हैं कि यह लीला नायक, इनकी सभी लीलाएं को हमें श्री वेंकटेश्वरा भक्ति चैनल की ओर से हमें यहाँ दिखाया जाता है। आज शुभ तिथि, शुभ मुहूर्त, माघ मास के शुक्ल पक्ष के दिन सप्तमी तिथि में जब भगवान सूर्य नारायण उत्तरायण में रहते हैं, तब इनकी प्रखर जो है, इनकी प्रखर किरण का हम आनंद लेते हैं। किस प्रकार से, उसी प्रकार से जाजल्यमान प्रभु अग्निदेव साक्षात स्वरूप में, रक्त रूप में, रक्त स्वरूप में हम सभी को प्रत्यक्ष देव के रूप में दर्शन देते हैं। इस प्रकार से इस चारों वीथियों में भी प्रभु आज इस विशिष्ट वाहन के रूप में हमें दर्शन दे रहे। हम जानते हैं कि प्रतिवर्ष ब्रह्मोत्सव उत्सव में नाना वाहनों के ऊपर प्रभु विराजमान होकर के हमें प्रातःकाल और संध्या काल दर्शन देते हैं। आज की जो विशिष्टताएं हैं, यह विशिष्टताएं हम जानते हैं कि प्रातःकाल सूर्य प्रभा वाहन के ऊपर आरूढ़ होते हैं और संध्या काल चंद्र प्रभा आरंभ होती है सूर्य प्रभा वाहन से और समाप्ति जो है वह चंद्र प्रभा वाहन से होती है। कितनी विशिष्टताएं हैं, क्योंकि प्रातः सूर्यदेव हमारे आराध्य होते हैं। इन्हीं के प्रातः स्मरण से, इन्हीं के क्षितिज से जब प्रभु का आगमन होता है प्रत्यक्ष देव भगवान सूर्य का, तब हमें प्रातः काल का आनंद आता है, प्रातः काल का बोध होता है। इस प्रकार से इसलिए रात्रि में रात्रिदेव चंद्रदेव का से इनका वाहन का अंत। इस प्रकार से आज संपूर्ण दिन नए नए वाहनों के ऊपर आरूढ़ होकर के अपने दिव्य लीलाओं का, अपने स्वरूपों का आज हमें दर्शन देंगे। यह आज का दिन जो है बहुत ही पुराणों के अनुसार बहुत ही विशेष माना जाता। अब देखिए धीरे धीरे इस शोभा यात्रा के क्रम में प्रभु अपने इस वाहन मंडप से आगे बढ़ रहे हैं। यह वेंकटाद्रि तीर्थ क्षेत्र है जहां हमें ये दिव्य स्वरूपों का दर्शन होता है। इसीलिए कहते हैं वेंकटाद्रि समम स्थानम ब्रह्मांडे नास्ति किंचन वेंकटेश समो देवो न भूतो न भविष्यति। ऐसा दिव्य क्षेत्र पुष्करणी वराह क्षेत्र पे सप्ताचलाधिवासे भगवान स्वयं, कलयुग के नायक भगवान स्वयं यहाँ पे विराजमान रहते हैं। इस प्रकार से इनकी अनेक यहाँ पे हम उत्सव देखते हैं। दिनोत्सव है, दिनोत्सव में पक्षोत्सव देखते हैं, पक्ष उत्सव है, मासिक उत्सव है, वार्षिक उत्सव है, विशिष्ट उत्सव है। इस प्रकार से अनेक यहाँ पे उत्सव मनाए जाते हैं, जिस उत्सवों में आज का जो यह रथ सप्तमी उत्सव है, नाम ही है इनका रथ सप्तमी। सप्ताश्वारूढ़ भगवान स्वयं साक्षात, एक तो कलयुग के प्रत्यक्ष देव हैं, ऊपर से सूर्य भगवान भी प्रत्यक्ष सूर्य नारायण हम इन्हें कहते हैं। साक्षात नारायण ही सूर्य है। इसलिए गीता में भी कहे हैं कि हमारे तो दो नेत्र हैं, सूर्य और चंद्र। गीताचार्य ने स्वयं इनको
जो है सो प्रस्तुति की है। इस प्रकार से अभय कटी वरद हस्त भगवान देखिए किस प्रकार से सभी भक्तों की कामना पूर्ण करने हेतु आज विशिष्ट रूप में किस प्रकार से देदीप्यमान इस मार्ग में सभी भक्तों को दर्शन कर। अहो भाग्य यह आज का दिन जो हम सभी भक्तगण इस ब्रह्म मुहूर्त से ही प्रातः काल से इनका सर्वप्रथम दर्शन कर रहे, इसीलिए इन्हें आदि देव भी कहा जाता है। तीनों लोक त्रिभुवनाधिपति, तीनों भवन में चतुर्दश सभी लोग जहाँ इनकी प्रकाश जाते रहते हैं, हर जगह पे इनकी प्रकाश की जो महिमा है हम जानते हैं। इस प्रकार से इनको ग्रहाधिपति भी कहा जाता है। देखिए किस प्रकार से ये नृत्यांगना दिव्यांगना जो भक्ति है वह सभी किस प्रकार से अपने भक्ति को इस मार्ग में भक्ति प्रदान कर रही हैं। कई भक्ति के कई सारे मार्ग हैं, उन सभी मार्गों से आज संपूर्ण यह जो दिव्य क्षेत्र है वह दिव्य क्षेत्र कितना सुंदर रमणीय लग रहा है। संपूर्ण दिव्य क्षेत्र को पत्र पुष्प इत्यादियों के द्वारा कितना सुंदर ढंग से संपूर्ण यह दिव्य त्रिमाला जो क्षेत्र है, वराह क्षेत्र है, इस क्षेत्र को सुसज्जित किया गया हुआ है, सजाया गया हुआ है। तो किस प्रकार से हमें मंदिर के जो प्रांगण है, जो वीथी है, उस वीथी को हमें दिखाया जा रहा है इस चित्र के दूरदर्शन के ऊपर। देखिए आनंद नीलय में भगवान ब्रह्मानंददायक यह स्वरूप है। जो इस दिव्य स्वरूप को देखता है वह ब्रह्मानंद को प्राप्त करता है। अखिलांड कोटि ब्रह्मांड नायक का आज यह प्रातः काल वेला में भगवान स्वयं इस वाहन पे आरूढ़ होकर के ये किस प्रकार से सभी भक्तों को दर्शन दे रहे हैं। और मध्य मध्य में जब संपूर्ण जो यह है गोविंदा गोविंदा गोविंद नाम संकीर्तन संपूर्ण आकाश गगन में, संपूर्ण वातावरण में चारों ओर जो है यह नाम तरंग ले रहा है। यह नाम उच्चारण के साथ प्रभु का यह शोभा यात्रा धीरे धीरे अपने पूर्व दिशा की ओर मुख्य द्वार की ओर देखिए कार से भक्तगण सभी इस विशिष्ट रूप का कर रहे हैं और हम सब बैठे बैठे प्रभु के इस दिव्य रूप का दर्शन करते हुए भगवान नाम गोविंदा गोविंदा नाम उच्चारण करते हुए प्रभु का दर्शन करते हैं। यही अभय हस्त है, कटी हस्त है, जिन सबको भक्तों को इस हस्त से प्रभु अपने इस दर्शन देते हैं। हम जानते हैं कि ब्रह्मोत्सव के प्रातः काल प्रभु इस वाहन के ऊपर आरूढ़ होते हैं और रथ सप्तमी के दिन आज के दिन सर्वप्रथम इस वाहन के ऊपर आरूढ़ होकर के सभी भक्तों को देखिए किस प्रकार से छत्र चामर इत्यादि भक्त मंडलियों के साथ सभी के साथ दूर दूर से इस दिव्य स्वरूप का, इस तिरुमल क्षेत्र भगवान का, इस वेंकटाधिपति का दर्शन किस प्रकार भक्तगण हाथ में आरती ले ले करके पधारे हुए हैं प्रभु के इस दिव्य दर्शन का। ऐसा लग रहा है शरीर से मुंड से जो सब संपूर्ण जो यह दिव्य क्षेत्र है सागर के समान लग रहा है। शरीर जो है, सर जो है वह सागर के समान एक तरह से लग रहा है। इतने भक्तगण यहाँ पे देखिए दूर दूर से भक्तगण आकर के प्रभु के इस मार्ग में आह्लादित हैं कि कब प्रभु इन प्रतीक्षा कर रहे हैं कि कब हमारे पास आएंगे। भक्तजन की जो यह संख्या है दूर दूर से आकर के भक्तगण इस दिव्य रूप का दर्शन करने हेतु इस मार्ग में कल रात्रि से ही सब रूप का दर्शन करने हेतु उपस्थित हैं, पधारे हुए हैं और के इस दिव्य रूप का आनंद ले रहे हैं। कई जन्मों के उपरांत हमें इस दिव्य स्वरूप का हमें दर्शन होता है। विशेष करके रथ सप्तमी के दिन अहो भाग्य है जो एक ही दिन हमें सभी दर्शन सभी वाहनों के ऊपर हमें प्रभु का विशेष रूप से दर्शन देते हैं। सभी वाहनों का भिन्न भिन्न स्वरूप है, भिन्न भिन्न रूपों में प्रभु भिन्न भिन्न में सुसज्जित होकर के हमें इस दिव्य रूप दर्शन देते
प्रचोदयति। ओम नमो वेंकटेशाय सूर्य नारायणाय नमः। वेद वेदांत वेद्य नमो नमो आदिदेव परमात्मा। वेद वेदांत वेद्य नमो नमो आदिदेव परमात्मा। परात्परा भक्त भवभञ्जना चराचर लोकजनका नमो नमो। परात्परा भक्त भवभञ्जना चराचर लोकजनका नमो नमो आदिदेव परमात्मा। वेद वेदांत वेद्य नमो नमो आदिदेव परमात्मा। गदाधरा वेंकटगिरि निलया सदानंद प्रसन्ना नमो नमो। गदाधरा वेंकटगिरि निलया सदानंद प्रसन्ना नमो नमो आदिदेव परमात्मा। वेद वेदांत वेद्य नमो नमो आदिदेव परमात्मा। वेंकटरमण गोविंद हरे संकटहरण गोविंद। वेंकटरमण गोविंद हरे संकटहरण गोविंद। वेंकटरमण गोविंद हरे संकटहरण गोविंद। संकटहरण गोविंद। संकटहरण गोविंद। संकटहरण गोविंद। संकटहरण गोविंद। श्रीनिवास गोविंद। श्री वेंकटेश 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 गोविंद।
हरे पुण्डरीकाक्ष गोविन्द पुराण पुरुष गोविन्द हरे पुण्डरीकाक्ष गोविन्द पुराण पुरुष गोविन्द हरे पुण्डरीकाक्ष गोविन्द पुराण पुरुष गोविन्द ओम नमो सूर्यनारायणाय। देखिए किस प्रकार से प्रभु हमें इस दिव्य रूप का दर्शन दे रहे हैं। धीरे धीरे कहते हैं कि इस वीथी में आनंद नीलय में मग्न आनंदित होते हुए प्रभु अपने भक्तों के साथ इस वीथी में प्रवेश कर रहे हैं। मध्य मध्य में देख रहे हैं कि किस प्रकार से ये पुजारी जन जो हैं वह इनकी आरती उतार रहे हैं। आरती का बहुत ही महत्व माना जाता है। नानाविध धूप दीप नैवेद्य इन्हें इस मार्ग में प्रस्तुत किया जाता है। और देखिए किस प्रकार से गज इस मार्ग में आनंद लीना में प्रभु के इस शोभा यात्रा में अपनी भक्ति को प्रदान करते हुए सबसे आगे रहते हैं। अहोभाग्य है कि जितने भी यहाँ पे सभी प्रकार के नाना प्रांतों नाना योनियों के नाना वेशभूषाओं के नाना भाषा भाषी उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम सभी प्रांतों के लोग यहाँ इस दिव्य रूप का प्रभु का दर्शन करते हैं। हम जानते हैं कि भगवान सूर्य नारायण की प्रतीक्षा हमें सर्वदा रहता है, क्योंकि सूर्य नारायण के आने से ही सभी कार्य का आरंभ होता है। अहोरात्र में इनका 24 घंटे का जो एक अहोरात्र है, जिस अहोरात्र में इनके आने से समय का ज्ञान होता है हमें, क्योंकि सूर्य भगवान सूर्य नारायण ही ऋतुकर्ता प्रभाकर कहा जाता है। ऋतुकर्ता प्रभाकर, कालकर्ता प्रभाकर, समय का काल का ज्ञान जो है वह हमें भगवान सूर्य के भ्रमण से ही पता चलता है। इसीलिए कहा भी जाता है कल्यते इति कालः, यह नायक जो काल है वह प्रभु के भगवान सूर्य नारायण के चलन से ही काल की गणना होती है। इसीलिए कालो वै श्रेष्ठ भी कहा जाता है। जिस प्रकार से हम किसी भी कार्य को करें, काल एक क्षण भी हमारे लिए इंतजार नहीं करता है। काल की अपनी गति है, काल अपनी गति से भ्रमण करता है, अपनी गति से चलता है। इसी प्रकार से सप्ताश्वारूढ़ भगवान सप्त अश्व पे घोड़ों पे विराजमान होकर के
सदा सर्वदा चतुर्दश भुवन में कहा जाता है त्रैलोक्य त्रैलोक्योरभिः, तीनों लोकों के स्वामी हैं ये। क्योंकि इनकी प्रकाश से ही संपूर्ण यह भुवन जो है वह प्रकाशित होता है, संपूर्ण ब्रह्मांड प्रकाशित होता है। सभी वेद विद्या विज्ञान के अधिष्ठाता इन्हें माना जाता है। सर्व ज्ञानोपकारकः, सर्वौषधि दायकः, सर्व पाप विनाशकः, सर्वोद्धारकः भी इनको कहा जाता है। इसीलिए इन्हें हम कहते हैं नमस्कारम प्रियम रभि। इनके विषय में, भगवान सूर्य नारायण के विषय में हम जितना भी वर्णन करें हमें सब पुराणों के द्वारा प्राप्त होता है। इसीलिए कहा भी जाता है ध्येयः सदा सवित्री मंडल मध्यवर्ती नारायणः सरसिजा शिव सन्निविष्टो केयोरवान मकर कुंडल मध्यवर्ती नारायणं सरसिजा शिव सन्निविष्टो। मंडल मध्यवर्ती है, यह मध्य में स्थित हैं। इसीलिए भगवान देखिए आज सूर्य नारायण के इस चक्र के मध्य में किस प्रकार से यह जो गोलाकार रथ है, चक्र है, उस मंडल मध्यवर्ती उस मंडल के आकार मंडल के मध्य में विराजमान होकर के नाना रत्न पुष्प इत्यादि सुगंधित द्रव्यों के द्वारा नाना रंग बिरंग के दीप्यमान जो रत्न है उससे सुसज्जित होकर के इस प्रातः वेला में आज सूर्य साक्षात यह हमें बता रहे हैं कि सूर्य नारायण भी भगवान सूर्य में साक्षात सूर्य के रूप में हूं, आप सभी को मैं दर्शन दे रहा हूं। इस प्रकार से कहते हैं कि हमें किस प्रकार से तुम ध्यान करो, तो ध्येय सदा श्रीमन नारायण। इसीलिए कहते हैं ध्येय सदा, मैंने कहा ध्येय सदा सवित्री मंडल मध्यवर्ती नारायण सरसिजा है, हमारे उस स्वरूप का दर्शन करो सूर्य नारायण के रूप में जब मैं रहूं। यही इनका आज यह प्रातः काल के वेला में, क्यों कि मैं साक्षात सूर्य भी मैं ही हूं। ऐसे नारायण का ध्यान हमें करते रहना चाहिए। इसीलिए कलयुग वैकुंठनाथ श्रीनिवास इस शोभा यात्रा में अत्यंत प्रभावशाली के रूप में प्रातः वेला में प्रथम रथ के रूप में आज सूर्य प्रभा वाहन के ऊपर आरूढ़ होकर के हमें इस दिव्य रूप का दर्शन दे रहे हैं। हम जानते हैं कि भारतीय जो हमारी संस्कृति है, यह संस्कृति अनेकों विधि विधाओं से परिपूर्ण है। अनेकों क्षेत्रों में प्रभु के अनेकों रूपों का स्वरूपों का हम वर्णन करते हैं, हम दर्शन करते हैं। पुराणों के द्वारा इनकी जो कथाएं हैं उन कथाओं का हम श्रवण करते हैं। इस प्रकार से प्रभु के नाना रूपों का दर्शन, नाना स्वरूपों का दर्शन, नाना नामों का ज्ञान हमें प्राप्त होता है। इस प्रकार से इन्हें सूर्य सप्त रश्मि रथी भी कहा जाता है। सप्त अश्वों के रथ पर आरूढ़ हो नित्य विहरण करने वाले चतुर्दश भुवन में सदा सर्वदा, मैंने कहा पहले भी आपको कि काल की जो गति है वह गति हर समय चलते रहने वाला गति है। हर समय काल चलता रहता है। उसी प्रकार से भगवान सूर्य नारायण का भी जो गति है सर्वदा सप्त अश्वों के ऊपर आरूढ़ होकर के यह चारों भुवन में, चतुर्दश भुवन में, तीनों लोकों में भ्रमण करते रहते हैं। लौकिक आभासिक है कि हम जानते हैं कि प्रातः वेला में जब आते हैं तब इनके आने से ही प्रातः, दिन, मध्याह्न, प्रहर, एक अहोरात्र में 8 प्रहर है।
सभी का कर्ता स्वयं साक्षात भगवान सूर्य नारायण है, स्वयं नारायण है। इसीलिए देखिए किस प्रकार से दूर दूर से भक्तगण आकर के इस दिव्य स्वरूप का दर्शन कर रहे हैं। अहमिक दया कहते हैं, एक के एक ऊपर कब हमें ललायित रहते हैं पूरे वर्ष, जो कब वो रथ सप्तमी का विशेष दिन आएगा, जिस दिन हम प्रभु के एक ही दिन में नाना वाहनों का दर्शन करेंगे, नाना स्वरूपों का दर्शन करेंगे। नायक की जो लीला है, उन लीलाओं का ऐसे दिव्य हम दर्शन करें। इसीलिए तो नाना योनि समुत्पन्ना आसो काल समुद्भव कहा जाता है। अनेक देवी देवताएं सभी आकर के, नर नारी भक्तगण पशु पक्षी इत्यादि सभी आकर के इस दिव्य स्वरूप का रूप का आज दर्शन। इस प्रकार से आज की जो विशिष्टताएं हैं बहुत ही हम जानते हैं कि भगवान उत्तरायण में रहते हैं। माघ मास की यह शुक्ल सप्तमी है, जिसको हम रथ सप्तमी के नाम से जानते हैं। विशेष रूप में यहाँ पे प्रभु की आराधनाएं शक्ति साधन किया जाता है। आज के बाद प्रभु के धीरे धीरे किरण में जो है, प्रकाश में जो है, वह प्रकाश धीरे धीरे बढ़ती जाती है। इस प्रकार से इस प्रखर प्रकाश को, तेज को प्राप्त करने हेतु, दर्शन करने हेतु सभी भक्तगण यहाँ पे आए हुए हैं। देखिए किस प्रकार से भक्त मंडली, भक्तमाला जो है यहाँ पे हैं। से प्रकार से हमें सप्ताश्वारूढ़ सप्ताश्वों का भी दर्शन कराया जा रहा है। विशिष्ट यह दर्शन है। यह लोक को आलोक और चैतन्य प्रदान करते हैं। सूर्य भगवान हमारे सभी, हम जानते हैं जितने भी हम कर्म करते हैं, उन सभी कर्मों का हमारे साक्षी के रूप में रहते हैं। हम नहीं जानते हैं, आत्मा वारे द्रष्टव्य कहा जाता है। हम नहीं जानते हैं, हम ये जानते हैं कि हम जो भी कर्म करते हैं उन कर्मों का कोई भी साक्षी नहीं है, ऐसा नहीं है। हम जो भी कर्म करते हैं, भी कर्मों के भी साक्षी साक्षात भगवान सूर्य नारायण है। इसलिए प्रत्यक्ष देव के रूप में इन्हें माना जाता है। उतना ही नहीं, आरोग्यम भास्कराद इच्छेद, यह जो मानव रूपी शरीर जो हमको मिला है, मानव योनि जो प्राप्त हुआ है, शरीर रूपी शरीरधारी जो हम प्राणी हैं, जो भी हैं, वह जो जन्म लिए हैं, उन सभी का आरोग्य प्रदान करता भी भगवान भास्कर ही हैं। आरोग्यम भास्कराद इच्छेद, कैसा भी रोगी हो, वह रोगी और अस्वस्थ व्यक्ति जब भगवान सूर्य के किरण के पास अपने आप को रखता है, किरण में आता है, प्रकाश में, उनके प्रकाश से जब प्रकाशित होता है तो अपने आप को वह स्वस्थ मानता है। इसीलिए सभी विनाश करने वाला इनके जो सप्त किरण है, उन सप्त किरणों में वह शक्ति है जो शक्ति से हमें हर चीज को, हम हर संपदा को हम प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार से हम प्राप्त करें तो इनकी जो आराधना से, इनकी आराधना से हम सभी चीज को प्राप्त कर सकते हैं। और इनकी आराधना का सबसे यदि स्तोत्र है, वह आदित्य हृदय स्तोत्र हम जानते हैं। नित्य प्रति आदित्य हृदय स्तोत्र का जो पाठ है, वह सर्व रोग विनाश कारक होता है। इसीलिए ततो युद्ध परिशांतम समरे चिंतया स्थितम रावणम जागरो दृष्ट्वा कहा जाता है। प्रकार से प्रभु की उपासना भारतीय संस्कृति में धर्मशास्त्र पुराणों के अनुसार
सबसे अधिक यदि पूजा किया जाए, आराधना किया जाए, सर्व संपदा की प्राप्ति हो, सर्व सौभाग्य की प्राप्ति करने हेतु भगवान सूर्य नारायण की आराधना करना चाहिए। प्राचीन काल से ही, वैदिक काल से ही मानव इतिहास में यह रहा है कि हमें प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में जागरण करना चाहिए, क्योंकि भगवान भास्कर ब्रह्म मुहूर्त के बाद ब्रह्म मुहूर्त में उनका आना आरंभ होता है। उनकी लालिमाएं धीरे धीरे क्षितिज से जब ऊपर आने लगे, तब हम मनुष्यों को चाहिए कि प्रभु का प्रातः काल जागरण करके हम उन्हें स्वागत करें, हम उन्हें नमस्कार करें, प्रणाम करें, इनके मंत्रों का, स्तोत्रों का जाप करें, पाठ करें। इसीलिए यह हमारे प्राचीन संस्कृति रही है कि भगवान भास्कर का हम ओम नमो वेंकटेशाय। शरणु श्री वैकुंठ नायक, शरणु श्री पुरुषोत्तमा, शरणु श्रीधर गरुड वाहन, शरणु वेंकट नायका, शरणु श्री वैकुंठ नायक, शरणु श्री पुरुषोत्तमा, शरणु श्रीधर गरुड वाहन, शरणु वेंकट नायका। परम पद गोविंद माधव, पद्मनाभ जनार्दना, परम पद गोविंद माधव, पद्मनाभ जनार्दना, धरणिधर करिवरद वामन, दैत्यहर बलिबंधना, धरणिधर करिवरद वामन, दैत्यहर बलिबंधना। शरणु श्री वैकुंठ नायक, शरणु श्री पुरुषोत्तमा, शरणु श्रीधर गरुड वाहन, शरणु वेंकट नायका, शरणु श्री वैकुंठ नायक, शरणु श्री पुरुषोत्तमा। जलज नेत्र मुकुंद केशव, शंख चक्र गदाधरा, जलधि शयन उपेंद्र अच्युत, शैलधर नारायण, जलज नेत्र मुकुंद केशव, शंख चक्र गदाधरा, जलधि शयन उपेंद्र अच्युत, शैलधर नारायण, आदियोगी मुनीन्द्र वंदित, अखिल सुरगण पूजिता, आदियोगी मुनीन्द्र वंदित,
सुरगण पूजिता वेद विनुत विरिञ्चि सन्नुत वेङ्कटेश नमो नमो वेद विनुत विरिञ्चि सन्नुत वेङ्कटेश नमो नमो वेङ्कटेश नमो नमो वेङ्कटेश नमो नमो शरणु श्री वैकुण्ठनायक शरणु श्री पुरुषोत्तमा शरणु श्रीधर गरुडवाहन शरणु वेङ्कटनायक शरणु 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 वेंकट नायक। किस प्रकार से मध्य मध्य में हम भजन का आनंद ले रहे हैं। शरण शरण भव वेंकट नायक। सदा सर्वदा सभी देवता मनुष्य मानव सभी प्रभु के सानिध्य पाने के लिए शरण तव का स्मरण करते रहते हैं कि प्यार से कब प्रभु की शरण में हम जाएं, किस प्रकार से उनकी दिव्य दृष्टि करें। इसलिए जिनके आने के लिए जिनकी प्रतीक्षा में देवता भी रहते हैं कि कब भगवान सूर्य नारायण क्षितिज से ऊपर आए और हम उनका दर्शन करें। सर्व तेजोमयी सर्वव्यापक सर्वदेव नमस्कारम कहते हैं भी हैं, सर्वदेव नमस्कारम केशवम प्रति गच्छति। सभी देव नमस्कार करके सभी कहाँ तो सब आराधना करते हैं भगवान केशव का। इसलिए इस विशिष्ट सभी देवता भी भगवान सूर्य नारायण के आने का इंतजार करते रहते हैं, प्रतीक्षा में रहते हैं कि कब यह उदयाचल पे आएंगे, क्षितिज से ऊपर आएंगे। क्योंकि हर कार्यों का आरंभ हम जानते हैं कि हर कार्य का आरंभ काल पे होता है और काल का कर्ता भगवान सूर्य नारायण। काल की गणना हम भगवान सूर्य नारायण की गति से करते हैं। हर कार्यों का आरंभ जो है वह भगवान सूर्य के ऊपर आधारित है। सर्वशास्त्र प्रवक्ता सर्वशास्त्र कर्ता स्वयं भगवान सूर्य नारायण है। कहा जाता है कि महावैयाकरणीय शब्दों के ज्ञाता सर्व सुख प्रदाता सर्व सौभाग्य दाता इन्हें माना जाता है। इनके द्वारा ही संकट मोचन हनुमान जी ने, राम भक्त हनुमान ने इनसे ही व्याकरण का ज्ञान प्राप्त किया था। ज्योतिष शास्त्रों का ज्ञान हमें भगवान सूर्य के द्वारा ही प्राप्त होता है। सूर्य सिद्धांत का जब हम अध्ययन करते हैं, स्वयं मायासुर को इन्होंने कहा था, न मे तेज सह कश्चित आख्या तुम नास्ति में क्षणः। हे माया, मेरे पास वह समय इतना समय नहीं है और मेरे प्रखर जो है इतने मेरे तेज है कि उस तेज के नीचे कोई ठहर नहीं सकता है। कोई व्यक्ति क्या देवता भी हमारे तेज के सामने ठहर नहीं सकता है। इसलिए इनकी तेज की जो प्रखरता है भगवान संकट मोचन हनुमान जी ने इन्हें लड्डू समझ के अपने मुंह में इस प्रकार से इनकी जो कीर्ति है, जो विशिष्टताएं हैं, यह सभी विशिष्टताएं हमें इनकी किरण से, इनकी प्रखर किरण से हमें प्राप्त होता है। हर चीजों को
इसीलिए मैं कहा ग्रहाधिपति भी इनको कहा जाता है। जातक के जन्म कुंडली में हम देखते हैं कि रवि बल क्या है। जिस जातक का कुंडली में, जिस किसी भी जातक की कुंडली में यदि रवि उच्च हो, रवि बलवान हो, रवि पूर्ण बलवान हो, शक्तिमान हो, तो वह जातक सरकारी अभियांत्रिक इत्यादि उद्योगों में जाता है। उसकी बुद्धि जो होती है प्रखर बुद्धि, बुद्धिमान कहलाता है। वह जिस प्रकार से दिन होने से प्रातः काल से लेके धीरे धीरे मध्याह्न होते 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 सायंकाल में इनकी प्रखर कम होती है, प्रातः काल से मध्याह्न बेला तक में इनकी जो किरण है वह किरण में तीव्रताएं, प्रखरताएं आती रहती है धीरे धीरे। जब भगवान सूर्य नारायण मध्याह्न बेला में 12 बजे अपने व्रत में हमारे मस्तक के ऊपर मध्य भाग में, आकाश के मध्य भाग में जब आते हैं, संपूर्ण किरण से अभियुक्त सुसज्जित रहते हैं, पूर्ण बलवान रहते हैं, पूर्ण जवान रहते हैं, जिसे हम कहते हैं। इसीलिए मध्याह्न बेला में साक्षात प्रभु आकाश के मध्य भाग में रहते हैं। उस समय में हम यदि बाहर में सनसन आकाश के नीचे प्रांगण में खड़े हो जाए तो इनकी इतनी प्रखर दिव्य तेज रहता है कि उस तेज के नीचे हम 5 मिनट भी खड़े नहीं हो सकते। इनकी जो किरण की जो प्रखरता है वह पूर्ण प्रखर में रहते हैं। तब फिर मध्याह्न बीतने के बाद जब संध्याचल की हैं तो संध्याचल में अर्थात पश्चिम मंडल में जब मध्याह्न के बाद पश्चिम मंडल की ओर इनकी रुख हो जाती है, इनकी यात्राएं जो है वह पश्चिम की ओर होने लगती है। तब वह धीरे धीरे इनकी किरण जो है वह अस्ताचल की ओर अस्त होने लगता है, धीरे धीरे कम होने लगता है शनैः शनैः। इस प्रकार से प्रभु के दिव्य रूप का तो हम ऐसे स्वरूपों का दर्शन हम रोज करते हैं। विशेषतया आज के दिन इनकी जो प्रखर किरण है, हर रोग विनाश करने वाला जो स्वरूप है, उनके हम दर्शन कर रहे हैं। सूर्य प्रभा मंडल पे विराजमान होकर के आज प्रभु वेंकट नायक हम सभी को कलयुग के प्रत्यक्ष देव हमें दर्शन दे रहे हैं। मध्य मध्य में आर्थिक वगैरह, इसीलिए मैं पहले भी कहा नक्षत्र ग्रह तारा नाम अधिपो विश्व भावना। यह सभी नक्षत्र तारा ग्रह सभी के अधिपति इनको माना जाता है। रक्त सर्व भवोद्भवः, इनका जो रंग है वह रक्त रंग है। रक्त मतलब होता है लाल, लाल रंग का इनके सप्त किरण कहते हैं। सप्ताश्वजुज सप्ता किरण सप्त रश्मि ही, इनके किरणों का नाम है सप्त रश्मि ही। और हर जो किरण है देखिए किस प्रकार से यह बटुक ब्रह्मचारी जो हैं, इनके आदित्य हृदय स्तोत्र का जो है यह यहाँ पे बैठ करके स्तोत्र का पाठ कर रहे हैं। दिवाकरे नमस्तुभ्यं प्रभा
विश्वसङ्कासंहारकुण्डलभूषितम् एकचक्रधरं देवं तं सूर्यं प्रणमाम्यहम् विश्वेशं विश्वकर्तारं महातेजप्रदीपनम् महापापारं देवं तं सूर्यं प्रणमाम्यहम् तं सूर्यं जगदानादं ज्ञानविज्ञानमोक्षदम् महापापारं देवं तं सूर्यं प्रणमाम्यहम् सूर्याष्टकं पठे नित्यं ग्रहपीडाप्रणाशनम् आहुर्गो लभते पुत्रा दरिद्रोदयमार्गवे आदिशं मधुकानं च यः करोदिरवेदिने सप्तजन्म बलिद्रोगी जन्म जन्म दरिद्रता श्रीशैलमधुमांसानि एकजन्तिरवेदिने नव्याधिशोकदारिद्र्यं सूर्यलोकं स गच्छते आदिदेव नमस्तुभ्यं प्रसीद मम भास्कर दिवाकर नमस्तुभ्यं प्रभाकर नमोऽस्तुते सप्तास्वरनमारूढं प्रचण्डं कश्यपात्मजम् श्वेतपद्मधरं देवं तं सूर्यं प्रणमाम्यहम् लोहितं रथमारूढं सर्वलोकपितामहम् महापापारं देवं तं सूर्यं प्रणमाम्यहम् त्रैगुण्यं च महासूर्यं ब्रह्म विष्णु महेश्वरम् महापापारं देवं तं सूर्यं प्रणमाम्यहम् ब्रूहिणं वेदसाम्पूज्यं वायुराकाशमेव च प्रभुस्वं सर्वलोकानां तं सूर्यं प्रणमाम्यहम् बन्धुकपुष्पसङ्कासंहारकुण्डलभूषितम् एकचक्रधरं देवं तं सूर्यं प्रणमाम्यहम् विश्वेशं विश्वकर्तारं महातेजप्रदीपनम् महापापारं देवं तं सूर्यं प्रणमाम्यहम् तं सूर्यं जगदानादं ज्ञानविज्ञानमोक्षदम् महापापारं देवं तं सूर्यं प्रणमाम्यहम् सूर्याष्टकं पठे नित्यं ग्रहपीडाप्रणाशनम् आहुर्द्रो लभते पुत्रा दरिद्रोदयमार्गवे आमिषं मधुपानं च यः करोदिरवेदिने सप्तजन्म बलिद्रोगी जन्म जन्म दरिद्रता श्रीशैलमधुमांसानि एकजन्तिरवेदिने नव्याधिशोकदारिद्र्यं सूर्यलोकं स गच्छते ततो युद्धः परिश्रान्तं समरे चिन्तया स्थितम् रावणं चागतो दृष्ट्वा युद्धाय समुपस्थितम् दैवतैष समागम्य द्रष्टुमव्यागतो रणम् उपागम्य परिभ्राममगस्यो भगवान् ऋषिः अगस्योवाच राम राम महाबाहो शृणु गुह्यं सनातनम् येन सर्वा नरे वत्सा समरे विजयिष्यसि आदित्योदयं पुण्यं सर्वशत्रुविनाशनम् जयावहं जपे नित्यम् अक्षयं परमं शुभम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वपापप्रणाशनम् जीवाशोकप्रशमनमायुर्वर्धनमुत्तमम् लक्ष्मीमन्तं समुद्यन्तं देवासुरनमस्कृतम् पूजयस्व विवस्वन्तं भास्करं भुवनेश्वरम् सर्वदेवात्मको हेष तेजस्वी रश्मि
वीराचक्रतवश्चैव ततोऽन्नं फलमेव च यानि कृत्यानि लोकेषु सर्वाण्येषु रविप्रभुः येन मापस्सु कृत्येषु कान्तारेषु भयेषु च कीर्तयन् पुरुषं तस्यैनावसेद विरागः बोधयस्वैनमेकाग्रो देवदेवं जगत्पतिम् एतत्त्रिगुणितं त्यक्त्वा युद्धेषु विजयिष्यसे अस्मिन् क्षणे महाबाहो रावणं तं वदिष्यसे एवमुक्ता तथागत्यो जगाम चेदागतम् एतच्छ्रुत्वा महातेजा नष्टः सर्वो भवद्भवः कारयामास सुप्रेतो राघवः प्रेतात्मवान् आदित्यं प्रेषजत्पादो परं हर्षमवाप्तवान् त्रिराजन्यासु चेद्भूता धनुराधाय वीर्यवान् रावणं प्रेषरुष्टात्मा युद्धाय समुपागमत् सर्वयज्ञेन मालावदे तस्य विलोभवत् अहरयोनिरीक्षरामं मुनिकमलं परमं प्रहृष्यमानमाम् विचित्रपति सञ्चयं विदित्वा सुरगणमध्य ततो वचस्वरेति इति श्री वाल्मीकि रामायणे युद्धकाण्डे आदित्य हृदय स्तोत्रं नाम सप्तोदशतः सर्गः समाप्तः सूर्याष्टकम् आदिदेव नमस्तुभ्यं प्रसीद मम भास्कर दिवाकर नमस्तुभ्यं प्रभाकर नमस्तुते सप्तस्वरदमारूढं प्रचण्डं कश्यपात्मजम् श्वेतपद्मधरं देवं तं सूर्यं प्रणमाम्यहम् रोहितं रथमारूढं सर्वलोकपितामहम् महाकायं देवं तं सूर्यं प्रणमाम्यहम् त्रैगुण्यं च महासूर्यं
महेश्वरम् महापापारं देवं तं सूर्यं प्रणमाम्यहम् पृथ्वीं वेदसां पुण्यं वायुराकाशमेव च प्रभुस्सं सर्वलोकानां तं सूर्यं प्रणमाम्यहम् बन्धुपुष्पसङ्काशं हारकुण्डलभूषितम् एकचक्रधरं देवं तं सूर्यं प्रणमाम्यहम् विश्वेशं विश्वकर्तारं महातेजप्रदीपनम् महापापारं देवं तं सूर्यं प्रणमाम्यहम् तं सूर्यं जगदानादं ज्ञानविज्ञानमोक्षदम् महापापारं देवं तं सूर्यं प्रणमाम्यहम् सूर्याष्टकं पठे नित्यं ग्रहभेदप्रणाशनम् अहोत्रो लभते पुत्रं दरिद्रो धनवान् भवेत् आमिषं मधुपानं च यः करोति रवेदिने सप्तजन्म भवेद्रोगी जन्म जन्म दरिद्रता स्त्रीलैलमधुमांसानि एकजन्यवेदिने नव्याधिशोकदारिद्र्यं सूर्यलोकं स गच्छति आयेव नमस्तुभ्यं प्रसीद मम भास्करा दिवाकर नमस्तुभ्यं प्रभाकर नमोऽस्तुते सप्तस्वरमारूढं प्रचण्डं कश्यपात्मजम् श्वेतपद्मधरं देवं तं सूर्यं प्रणमाम्यहम् लोहितं वेदमारूढं सर्वलोकपितामहम् महापापारं देवं तं सूर्यं प्रणमाम्यहम् सूर्यं जगदानादं ज्ञानविज्ञानमोक्षदम् महापापारं देवं तं सूर्यं प्रणमाम्यहम् बृंहितं वेदसां पुण्यं वायुराकाशमेव च प्रभुस्सं सर्वलोकानां तं सूर्यं प्रणमाम्यहम् बन्धुपुष्पसङ्काशं हारकुण्डलभूषितम् एकधरं देवं तं सूर्यं प्रणमाम्यहम् विश्वेशं विश्वकर्तारं महातेजप्रदीपनम् महापापारं देवं तं सूर्यं प्रणमाम्यहम् सूर्यं जगदानादं ज्ञानविज्ञानमोक्षदम् महापापारं देवं तं सूर्यं प्रणमाम्यहम् सूर्याष्टकं पठे नित्यं ग्रहभेदप्रणाशनम् अहोत्रो लभते पुत्रं दरिद्रो धनवान् भवेत् आमिषं मधुपानं च यः करोति रवेदिने सप्तजन्म भवेद्रोगी जन्म जन्म दरिद्रता स्त्रीलैलमधुमांसानि एकजन्ति रवेदिने नव्याधिशोकदारिद्र्यं सूर्यलोकं स गच्छति आयेव नमस्तुभ्यं प्रसीद मम भास्करा दिवाकर नमस्तुभ्यं प्रभाकर नमोऽस्तुते सप्तस्वरमारूढं प्रचण्डं कश्यपात्मजम् श्वेतपद्मधरं देवं तं सूर्यं प्रणमाम्यहम् लोहितं वेदमारूढं सर्वलोकपितामहम् महापापारं देवं तं सूर्यं प्रणमाम्यहम् त्रैगुण्यं च महासूर्यं ब्रह्म विष्णु महेश्वरम्
क्षमा प्रार्थना यदक्षर पदभ्रष्टं मात्राहीनं च यद्भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां देव नारायण नमोऽस्तुते। ओम नमो वेंकटेशाय। ओम भगवते श्री सूर्य नारायणाय नमः। प्रिय भक्तजनों, हमने अभी किस प्रकार से सूर्याष्टक और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ श्रवण किया है। इस स्तोत्र पाठ में विभिन्न मंत्र को हमने सुना है कि किस प्रकार से इस स्तोत्र का पाठ बटुक बालक बालिकाएं, छोटे छोटे नन्हे बालक बालिकाएं के मुख के द्वारा कितने परिश्रमों से इन लोगों ने इस प्रातः वेला में इस दिव्य वराह सप्ताचल भगवान के इस दिव्य क्षेत्र में उपस्थित होकर के अपनी इस मंत्रों के द्वारा स्तुति कर रहे हैं। कहा जाता है इन स्तोत्रों में जो नित्य प्रति इस सूर्याष्टक का आदि देव का पारायण करता है, स्तोत्र का सुमिरन करता है, स्मरण करता है, प्रवचन करता है, उनको ग्रह न स्पर्शयेत ग्रह दोषम न जायते। उन लोगों को ग्रहकृत जो दोष है, ग्रह जनित जो कष्ट है, उस कष्ट को वह कष्ट जो है वह स्पर्श नहीं करता है। सप्त जन्म न दारिद्र्यम, जो इस स्तोत्र का पाठ करता है, स्मरण करता है, सुमिरन करता है, उसको 7 जन्मों तक दरिद्रता जो है वह स्पर्श नहीं करता है। दरिद्रता जो है वह दूर ही रहता है भगवान भास्कर के इस स्तोत्र का पाठ करने से। रोगी को रोग स्पर्श नहीं करता है। अपुत्र कहते हैं अपुत्रस्य गदर नास्ति, जो अपुत्रवान है वह इस स्तोत्र के द्वारा, स्मरण के द्वारा पुत्रवान होते हैं, पुत्र धन को प्राप्त होते हैं, पुत्र रत्न को प्राप्त होते हैं। जो दरिद्र हैं वह सर्व संपत्ति प्रदात्री, सब धन को प्राप्त करते हैं, सब सुख को प्राप्त करते हैं, सर्व सौभाग्य प्राप्त करते हैं सिर्फ भगवान सूर्य देव की आराधना से। खास तौर पे जब प्रभु इस मंडल मध्यवर्ती में जब विराजमान हो, इस बरात क्षेत्र में के दिन, इस रथ सप्तमी के दिन विशेष रूप से जो भक्तगण आज के दिन आदित्य हृदय स्तोत्र का सूर्याष्टक का जो भक्तगण स्मरण करता है, पाठ करता है, कई पापों से वह विमुक्त हो जाता है। इस प्रकार से आनंद लीला में स्थित भगवान इस सूर्य प्रभा रथ के मध्य में विराजमान होकर के सप्ताश्वरूढ़ प्रभु का हम सभी दर्शन दे रहे। बहुत ही कल्याणमयी, सर्वगुणमयी, सर्व प्रदात यह दर्शन है। इसलिए हे भक्तगण, हम सभी श्रद्धा के साथ भगवान का यह भगवान नाम उच्चारण गोविंदा सूर्य नारायण गोविंदा इस प्रकार से हृदय में स्मरण करते हुए आनंद में प्रभु के इस दिव्य रूप का दर्शन करने का हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ। इसलिए इस विशेष रूप का दर्शन करना ही हमारे जीवन का परम लक्ष्य है। इसलिए क्योंकि यह जो तम है, यह जो अंधकार है, ज्ञान रूपी जो अंधकार है, उस ज्ञान रूपी अंधकार का नष्ट करने वाला क्षमता स्वयं सिर्फ भगवान सूर्य नारायण में है। इसीलिए तमो विघ्नकारः कहा जाता है। तम नष्टकारः, तम नष्टः, तम का मतलब होता है अंधकार। यहाँ जो अंधकार है वह किस प्रकार था? तो माया रूपी अंधकार रूपी जो अज्ञान हमारे मन में जो रहता है, जो प्रवेश जो है धूमिल है,
उसको हटा करके ज्ञान रूपी जो ज्ञान है, जो विद्या है, वह हमें प्रदान करे, क्योंकि सर्व विद्या प्रदाता भगवान सूर्य नारायण है। मैंने पहले भी कहा था, सर्व ज्ञान प्रदाता, सर्व ज्ञान विज्ञानमयी, सर्व विद्या प्रदाता, सर्व सौभाग्यदाता, सर्व सुखदाता, सब आरोग्यदाता को प्रदान करने वाले इनमें वह सप्तरश्मि जो शक्ति है, उस शक्ति का हमें अब कैसे आराधना किया जाए। आज तो विशिष्ट आराधना है, नित्य प्रति हमें प्रभु का जो आराधना है वह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके हमें प्रभु का स्मरण करना है, प्रभु के स्वागत में हमें नमस्कार प्रणाम करना है, जाप करना, क्योंकि स्वागत के लिए जब ये क्षितिज से ऊपर ब्रह्म मुहूर्त में आना शुरू होता है, तब भक्तजनों को चाहिए कि हम प्रभु भगवान भास्कर का स्मरण करें, प्रथम किरण का, प्रथम उषा का, प्रथम दर्शन इनका हम करें, और इनको प्रसन्न करने के लिए ताम्र पात्र में, ताम्र का जो लोटा होता है, पात्र है, उस लोटे में हमें इनके मंत्रों का उच्चार, आ कृष्णेन रजसा भृतमानो निवेशयन्ना मृतम मर्त्यंच हिरण्येन सवितार यथा देवो जाति भुवनानि पश्यन्य। इन मंत्रों के द्वारा 7 बार इन्हें जल देने से हमारी सभी कामनाएं जो है वह सिद्ध हो जाती है, पूरित हो जाती है। इन मंत्रों के द्वारा उस ताम्र के जल जो पात्र है, उस पात्र में पूर्ण जल डाल करके उसमें सप्त पीत पुष्प या रक्त पुष्प को हम डाले, 7 अक्षत डाले, वो डाल, क्योंकि अक्षत का मतलब होता है चावल। कैसा चावल डालना चाहिए में जो क्षति नहीं हो, जिस चावल का ऐसे अक्षत। ओम नमो वेंकटेशाय। गोविंद कृष्ण विठले वेणुगोपाल कृष्ण विठले, गोविंद कृष्ण विठले वेणुगोपाल कृष्ण विठले, गोविंद कृष्ण विठले वेणुगोपाल कृष्ण विठले, गोविंद कृष्ण विठले वेणुगोपाल विठले, रंग रंग विठले जय पांडुरंग विठले, रंग रंग विठले जय पांडुरंग विठले, रंगा रंगा विठले जय पांडुरंग विठले, रंगा रंगा विठले जय पांडुरंग विठले, गोविंद कृष्ण विठले वेणुगोपाल कृष्ण विठले, गोविंद कृष्ण विठले वेणुगोपाल कृष्ण विठले, पंढरीनाथा हे पांडुरंगा रंगा गोविंदा विठला, पंढरीनाथ हे पांडुरंग रंगा गोविंद विठला, सुकुमार सुंदर विठल विठला शांत स्वरूपा विठला, सुकुमार सुंदर विठल विठल शांत स्वरूपा विठला, गोविंद कृष्ण विठले वेणुगोपाल कृष्ण विठले, गोविंद कृष्ण विठले वेणुगोपाल कृष्ण विठले, रंग रंग विठले जय पांडुरंग विठले, रंग रंग विठले जय पांडुरंग विठले, भक्तवत्सला विठला समदयाळा विठला, भक्तवत्सला विठला विठला
भक्तवत्सला विठला विठला परमदयाळा विठला गोविंद कृष्ण विठले वेणुगोपाल कृष्ण विठले रंगा रंगा विठले जय पांडुरंग विठले रंगा रंगा विठले जय पांडुरंग विठले पांडुरंग विठले जय पांडुरंग विठले जय जय विठला पांडुरंगा जय हरी विठला पांडुरंगा 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 जय हरी विठला पांडुरंगा जय हरी विठला पांडुरंगा विठला 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 जय बोलो 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 राम 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 जय बोलो विठला 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 जय बोलो विठला 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 जय बोलो कृष्ण 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 जय बोलो विठला 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 जय बोलो गोविंद 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 जय बोलो गोविंद 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 जय गोविंद गोविंद जय बोलो गोविंद 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 जय बोलो विठला 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 जय बोलो विठला 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 जय बोलो हरि 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 जय बोलो हरि 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 जय बोलो हरि 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 जय बोलो हरि 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 जय बोलो विठला 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 जय बोलो गोविंद
गोविंद विठले गोपाल विठले गोविंद विठले गोपाल विठले गोविंद विठले गोपाल विठले गोविंद विठले गोपाल विठले। ओम नमो वेंकटेशाय। गोविंद विठले गोपाल विठले। हम जानते हैं कि प्रभु के अनेक नाम हैं, सहस्र नाम हैं। जिन नामों में गोविंद नाम, विठल नाम, महाराष्ट्र इत्यादि क्षेत्रों में प्रभु का नाम विठल कहते हैं। अनेक नामों से, अनेक पुराणों में अनेक नामों से प्रभु का स्मरण किया है, गान किया है, गुणगान गाया जाता है। इसी को नाम संकीर्तन करते हुए मध्य मध्य में इस शोभा यात्रा को हम देख रहे हैं, किस प्रकार से नाना नामोच्चारण का भजन हो रहा है। भक्तगण नए नए रूप में, स्वरूपों में, आभरणों में प्रभु को दर्शन कर रहे हैं। इस प्रकार से अद्भुत यह जो संगम है इस शोभा यात्रा में, इस रथोत्सव में, आज प्रथम वाहन में हम देख रहे किस प्रकार से नाना भाषा भाषी, नाना प्रांतों के लोगों के साथ यहाँ किस प्रकार से भक्तगण का तांता लगा हुआ है। हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में नाना प्रांतों से आकर के इस प्रभु के इस दिव्य रूपों का आनंद ले रहे हैं, आनंद कर रहे हैं। अहो भाग्य, कई जन्मों के उपरांत प्रभु के इस दिव्य रूपों का, आज के स्वरूपों का, दिव्य अलंकृत इस रूप का दर्शन हो रहा है। देखिए किस प्रकार से इस रथ चक्र में जो 7 अश्वों के द्वारा सुसज्जित यह रथ है, इस रथ के मध्य में किस प्रकार से कलो वेंकट नायक इस मध्य में स्थित हैं, विराजमान होकर के मध्य मंडल मध्यवर्ती यह जो सूर्य मंडल है, इस रथ को हम कहते हैं सूर्य मंडल। जो यह गोलाकार जो यह मंडल है, इस मंडल के मध्य में विराजमान है। कह रहे कि चारों जो यह 14 जो भुवन है, इस भुवन के मध्य में मेरा अवस्थित यह स्थान है। इनके जो यह नेत्र है वह सूर्य और चंद्र को नेत्र कहा गया। ये कहते हैं सूर्य चंद्रौ च मम नेत्रम। प्रभु के जो नेत्र हैं वह सूर्य और चंद्र को माना जाता है। नूतन छत्र चांवर देखिए किस प्रकार से सुसज्जित है प्रभु के, और प्रखर जो किरण है वह प्रखर किरण किस प्रकार से चुंबेमान हो रहा है इस मार्ग में। रक्त पुष्पों के द्वारा इन्हें सुसज्जित किया गया, क्योंकि भगवान सूर्य नारायण का जो रंग है वह रक्त रंग है, रक्त है, रक्तांभूज, इसीलिए कहा जाता है, इन्हें रक्त कहा जाता है। इस प्रकार से सर्व संपद दीप्यमान यह दर्शन होता है। देखिए किस प्रकार से जो यह आरती है वह कुंभ आरती इन्हें यहाँ पे प्रदान किया जा रहा है। इस प्रकार से धीरे धीरे प्रभु के इस यह जो वाहन है वह वाहन कर रहा है। और आज विशिष्टताएं हैं कि हम ब्रह्मोत्सव में नित्य प्रति जिस वाहन का 9 दिनों तक दर्शन करते हैं, उन सभी वाहनों का आज हम एक ही दिन में प्रातः काल से लेकर के रात्रि तक में प्रत्येक वाहनों का हम आज दिव्य रूप का प्रभु का हम दर्शन करेंगे। ऐसे दिव्य स्वरूप का दर्शन आज हमें तिरुमाला तिरुपति दिव्य क्षेत्र से श्री वेंकटेश्वरा भक्ति चैनल की ओर से हमें दिखाया जा रहा है। इस प्रकार से मध्य मध्य में प्रभु की आरती भी उतारी जा रही है। हम देख रहे हैं किस प्रकार से शनै शनै वाहन मंडप की और यह जो रथोत्सव, यह जो शोभा यात्रा है, भगवान सूर्य नारायण की जो यह शोभा यात्रा है वह धीरे धीरे शनै शनै किस प्रकार से बरता रहा, अपने तेजों को बिखेरते हुए, क्योंकि इन्हें तेजोमयी कहा जाता है। यह अपने सुंदर
हिरण्य स्वरूप इनका जो तेज है, स्वर्ण की तरह जो देदीप्यमान इनकी जो तेज है, वह तेज इस शोभा यात्रा के मार्ग में कर रहा है। जयाय जयभद्राय हरस्वाय नमो नमः, नमः सहस्रांशु आदित्याय नमो नमः। सहस्र अंशु, सहस्र का मतलब होता है 1000 किरण को प्रदान करने वाला आदित्याय नमो नमः। इस प्रकार से इनके संकीर्तन हम करते रहते हैं, प्रभु के नाम संकीर्तन ही। ओम नमो सूर्य नारायणाय नमः। गोकुलनंदन गोविंदा। पद्मावती प्रिय प्रसन्न मूर्ति अभयहस्ता अक्षय वरदा शंख चक्रधर शांग गदाधर विरजातिरस्थ विरोधि मर्दन सालग्रामधर सहस्रनामा लक्ष्मी वल्लभ लक्ष्मणाग्रजा कस्तूरी तिलक कांचनांबरा गरुड़ वाहना गजराज रक्षक गोविंदा हरि गोविंदा गोकुल नंदन गोविंदा गोविंदा हरि गोविंदा गोकुल नंदन गोविंदा। वानर सेवित वारधि बंधन सप्तगिरीशा एक स्वरूपा श्री राम कृष्ण रघुकुल नंदन प्रत्यक्ष देवा परम दयाकर वज्र कवचधर वैजयंती माला वड्डिकासुलवाड़ा वसुदेव तनय बिल्व पत्रार्चित भिक्षुक संस्तुत स्त्री पुंरूपा शिव केशव मूर्ति गोविंदा हरि गोविंदा गोकुल नंदन गोविंदा गोविंदा हरि गोविंदा गोकुल नंदन गोविंदा। ब्रह्मांड रूपा भक्त रक्षका नित्य कल्याण नीरजनाभा अति राम प्रिय हरि सर्वोत्तम जनार्दन मूर्ति जगत साक्षी रूपा अभिषेक प्रिय आपन निवार रत्न किरीटा रामानुजनुत स्वयं प्रकाशा आश्रित पक्षा नित्य शुभप्रद निखिल लोकेश गोविंदा हरि गोविंदा गोकुल नंदन गोविंदा गोविंदा हरि। आद्यंतरहिता इह परदायक इभराज रक्षक परम दयाळो पद्मनाभ हरि तिरुमलवासा तुलसी वनमाला शेषशायिनी शेषाद्रि निलया
మత్స్యావతార ఏడుకొండలవాడ గోవింద హరి గోవింద గోకుల నందన గోవింద గోవింద హరి గోవింద గోకుల నందన గోవింద గోవింద హరి विना व्यङ्कटेशं ननाथो ननाथः सदा व्यङ्कटेशं स्मरामि स्मरामि हरे व्यङ्कटेश प्रसीद प्रसीद प्रियं वेङ्कटेश प्रयच्छ प्रयच्छ